Hello everyone, I am Kajal Verma, Clinical Instructor of Mother Teresa College of Nursing, and today we will be discussing about another renal and urinary disorder. So the topic for today is nephrotic syndrome. So we will proceed to our topic. So the definition of nephrotic syndrome says that it is a primary glomerular disease characterized by proteinuria, hyperproteinemic edema, hypercholesterolemia, hypoalbuminemia and hyperlipidemia. Because of gross proteinuria, serum albumin is low, that is less than 2.5 gram per deciliter. So in simple words, if we say, nephrotic syndrome can be defined as when the kidney excretes a large amount of protein in the urine. मतलब कि क्या बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो किडनी है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो यूरिन में सिक्रीट करता है। या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे किडनी के जो क्लस्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, जो कि क्या करता है वेस्ट सिक्रीट करता है, वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। उसके वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के केसेस रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज दिया हुआ है, जैसे कि प्रोटीन यूरिया. So the meaning of proteinuria is increased level of protein in urine. And hypoproteinemic edema. So hypoproteinemic edema, that means abnormal low level of protein in blood, and that results in edema due to fall in serum protein level. Next one we are seeing is hypercholesterolemia. That means high level of cholesterol in blood. Hypoalbuminemia, that means level of albumin is low in blood. मतलब जितना एल्ब्यूमिन रहना चाहिए ब्लड में उससे लो लेवल है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. देन नेक्स्ट इज हाइपरलिपिडेमिया. हाइपरलिपिडेमिया दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ फैट्स इन ब्लड. अब यहाँ पे हम एक और चीज देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, प्रोटीन यूरिया सीरम एल्ब्यूमिन इज लो. तो नॉर्मल प्रोटीन यूरिया सीरम एल्ब्यूमिन लेवल क्या होता है, नॉर्मल जो रहता है वैल्यू वो होता है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर. तो नॉर्मल हमारा क्या है, प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन लेवल 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर. दैट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया सीरम एल्ब्यूमिन. Now next we will see is types. So the first type of nephrotic syndrome is idiopathic. Now the meaning of idiopathic itself is unknown. That means it has occurred from any unknown origin. So it says in childhood the vast majority belongs to category. It is regarded as a sort of autoimmune phenomena. Autoimmune, that means when the body sense attacks the own organ thinking it as in foreign material. So that is known as the autoimmune phenomena, especially since responds well to immunosuppressive therapy. It is of two types. First is minimal change nephrotic syndrome. Second one is significant change. So in minimal change we can see that this is predominant type seen in 86% of the cases. Now the meaning of predominant is हैविंग अ सुपीरियर स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो उभर के बाहर आता है वो उसको हम बोलते हैं प्रीडोमिनेंट. नाउ द सेकेंड वन इज सिग्निफिकेंट चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. दिस इज इनफ्रीक्वेंट mesangial proliferation is seen in 5% cases and focal sclerosis is seen in 10% cases. तो frequent mesangial proliferation क्या होता है, जिसमें rapid increase होता है सेल्स का. प्रोलिफरेशन मतलब हम जानते हैं जब क्या होता है, सेल्स या कुछ भी चीज जो होती है वो रैपिडली क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन. और यहाँ पे अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं फोकल स्क्लेरोसिस. सो दैट मीन्स इट डिस्क्राइब्स दी स्कैरिंग इन दी किडनीज, दैट मीन्स फोकल स्क्लेरोसिस. So the second type is secondary nephrotic syndrome. Now as we know there is a difference between primary and secondary. So secondary means that when nephrotic syndrome occurs due to any other disease condition or any other underlying disease condition. मतलब कि nephrotic syndrome जब किसी disease condition के वजह से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, secondary nephrotic syndrome. So it occurs in children of all cases. And second, this condition may occur due to some form of chronic glomerulonephritis, due to diabetes mellitus, SLE that is systemic lupus erythematosus, malaria, malignant hypertension, hepatitis B, infective endocarditis, HIV/AIDS, drug toxicity, lymphomas,
सिफिलिस एक्सेट्रा। दैट मीन्स ये जो डिसीज कंडीशन है इसका एक अंडरलाइन कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बन के आता है, इसीलिए उसको कहा गया है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। थर्ड वन इज कंजेनाइटल। नाउ एज वी नो कंजेनाइटल मतलब कि क्या होता है, द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, मतलब कि जेनेटिक जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है उसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल। सो दैट मीन्स it is a rare but serious and fetal problem usually associated with other congenital anomalies of the kidney. It is rare, बहुत कम होता है, but it is serious. It is inherited as autosomal recessive disease, means genetics to genetics से क्या होता है, pass down होता है. Severe renal insufficiency and urinary infection along with this condition results in poor prognosis. Next is infantile nephrotic syndrome. The term is applied to nephrotic syndrome occurring in infants between 4 to 12 months of age. Its major causes is MPHS2 and diffuse mesangial sclerosis. So the term nephrotic syndrome occurring मतलब ये infantile किनको होता है, कौन से एज ग्रुप को होता है, ये होता है 4 to 12 मंथ एज ग्रुप को होता है, और इनके कॉजेज जो है वो है MPHS2 एंड डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, मतलब कि हार्डनिंग या स्कैरिंग ऑफ द किडनी। नाउ वी विल मूव डाउन टू इटियोलॉजी। तो पहला है प्राइमरी रीनल कॉजेज एंड दैट अंडरलाइन कंडीशंस आर मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो दे इन द प्राइमरी कॉजेज, मतलब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो किसी अंडरलाइन डिसीज कंडीशन के वजह से नहीं, जो कि प्राइमरी रीनल कॉज है उनके अंदर ये सब आता है, जो कि है मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्कैरिंग ऑफ द किडनी, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का इन्फेक्शन बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, जो कि किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। Next is systemic cause. So in systemic cause we can see the cases are infections, toxins, infection that can be any bacterial or viral infection that occurs in the kidney and leads to nephrotic syndrome. Toxins can be mercury, bismuth, gold. If we inhale or if we only inhale the toxins, so that can lead to nephrotic syndrome. Next is allergic, bee stings, inhaled pollen, food allergy. Cardiovascular, in cardiovascular the factors are sickle cell disease, renal vein thrombosis, congestive heart failure. Malignancy, that means tumor we can say, leukemia. Others is SLE, already discussed, systemic lupus erythematosus and anaphylactic purpura. Now the pathophysiology. In pathophysiology, first is written that is alteration in glomerular basement membrane. So इसका मतलब क्या होता है कि glomerular basement membrane मतलब कि क्या है, it is a ribbon like extracellular matrix that lies between the endothelium and the podocyte food processes. तो उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसमें अल्ट्रेशन होता है, उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, स्लाइट चेंजेस। तो वो किस चीज़ पे रिजल्ट करता है, अल्टर्ड ग्लोमेरुलर प्रोटीन परमिएबिलिटी, मतलब कि अब जैसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में चेंजेस आया, वो किस चीज़ को अल्टर किया, ग्लोमेरुलर प्रोटीन परमिएबिलिटी को थोड़ा सा वो चेंज किया। अब परमिएबिलिटी मतलब कि क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस के बारे में, सेल परमिएबिलिटी के बारे में और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये भी वही है परमिएबिलिटी, जिसमें क्या होता है, किडनी के पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है जिसमें वो क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स को अलाउ करता है जाने के लिए, और जो लार्ज पार्टिकल्स रहते हैं उसको क्या करता है, वो अलग कर देता है, मतलब वो एक छन्नी की तरह काम करता है जिसमें वो स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स को अलग कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस छन्नी का भी क्या हो रहा है, काम में अल्ट्रेशन आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है वो यूरिन में हम लोगों को इंक्रीज लेवल में दिख रहा है। अब उसके वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हुआ। अब उसकी वजह से क्या दो चीजें हो रही, पहला तो एडिमा हो रहा है, दूसरा हो रहा है डिक्रीज वास्कुलर वॉल्यूम।
अब जैसे ही वास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, मतलब कि जो भी रीनल से ब्लड फ्लो होता है उसमें भी डिक्रीज आया, मतलब उसमें भी एक गिराव आया। उसके बाद फिर क्या हुआ होता है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, मतलब कि एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है और सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ गया है बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर से क्या हो रहा है, एडिमा कॉज कर रहा है। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मूविंग नेक्स्ट टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।